Yeah. No. Really, I'm very excited. And first of all, I want to thank to Wellgate Studio, Khalid Bhai, Manish ji, and Zakir Bhai. Thank you for coming. And Khalid Bhai, especially आपका thanks कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, ये मौका मुझे दिया. और जहाँ तक स्पेनिश ब्यूटी की बात है, शी इज़ रियली वेरी प्रीटी. कल हमने फोटो शूट किया, तब मेरी पहली मुलाकात हुई. एंड शी इज़ रियली वेरी गुड एक्ट्रेस, रियली वेरी गुड एक्ट्रेस. थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी और बहुत फास्ट वो पिकअप कर रही हैं. एंड आई थिंक शायद हमको डब ना करना पड़े उसके साथ. this is a big announcement. Wow, इतनी fabulous है. और imagine सिर्फ photo session में, and this is the beauty of course of our director, that वो नजरें पहचान लेती हैं to the talent. So he says of course she's also a fabulous actress. Khalid साहब, already permission granted. मतलब already fabulous actress भी हो गई. Wow, what a beautiful feeling, sir. And thank you, sir, for this grand photo session. And we truly look forward to, of course, the grand unveiling और शुभ मुहूर्त जब होगा तब बहुत सारे राज फाश रहेंगे. Till then, of course, हमारा साथ तो बना रहेगा. So I'm going to come and speak to Manish Goyal जी. Manish जी, this was your idea. ये आपका experience है 7 साल का. And you are from UP. तो ये किस तरह thought आया और किस तरह you approached Khalid साहब और आपका सपना साकार हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको मनीष जी? थैंक यू. ये एक्चुअली एक सपना भी है और एक मिशन है. छोटे छोटे हम लोग देखते हैं कि पैसा चोरी होता है लोगों का, कभी हम बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, हमें कोई पसंद नहीं की बनाई हमारा कोई भी ले लेता है. तो इट्स ए बिग मिशन. अभी तक जो मेरा मिशन था वो 140 करोड़ लोगों के लिए था, भारत के लोगों के लिए. लेकिन थैंक्स टू खालिद सर कि अब ये मिशन ग्लोबल मिशन हो गया है जो 600 करोड़ लोगों के लिए हो गया है. क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे से लेकर यानी 4 साल के बच्चे से लेकर और 70 साल तक का इंसान प्रभावित होता है. उसका पैसा निकल रहा है, उसको पता भी नहीं लगता है कि हम जाए कहाँ पे. तो बस उसी के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिससे लोगों की जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं वहाँ हेल्प करें. और जो लोग कुछ गलत रास्ते में हमारे परिवार के लोग निकल गए उनको सही रास्ते. मनीष जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि वो कौन सा इंसिडेंट था जब आपके दिल ने आपसे कहा आगे. Alright, and let's have the countdown. 1, 2, 3, ladies and gentlemen. May we please put our hands together for the supremely gorgeous for the Cyberman grand announcement. For the replay by our reigning Miss Global, Miss Ashley. Hola, Ashley. Wow, please. Zakir साहब, अभी आ जाएं sir. Please join us. आप सब आ जाएं. Everyone. Manish ji, you want to come that side, please? आ जाएं. Okay, is this okay? Sure. Wow, the grand picnic. We'll take a few moments as we have our reigning Miss Global here in India. Ladies and gentlemen, she's from Puerto Rico and
She won the title this year on Jan 18th at Philippines, where she was announced our reigning Miss Global. Gives us a huge honor to have your brilliant presence along with your smile. Mansi, heartfelt congratulations to also our queen, Miss Mansi Chaurasia, for winning the title of Miss India Global. So please, Ajay, Rakesh ji, Manish ji, you don't have to miss out on this beautiful moment. So we have two beauty queens. Ooh la la la. This is unbelievable. Mansi, we are proud of you, the pride of our nation. It's a huge honor. Mansi is a part of the film or no, वो तो खालिद साहब ही बताएंगे हमें. मैं नहीं इस रास को फास्ट कर सकती हूँ. But for now, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार. We welcome our beautiful queens here. So we do have the bouquets for everyone. We'll do it later. Should we start with पहले बात कर लें? So let's begin with जिनकी वजह से we're all here for this grand announcement, and wow, let me take a few minutes to just stare at you. Wow, mashallah, absolute. The personification of beauty on stage, and Khalid Saab, we're very excited. Yeah, we're waiting. Please, हमें सारे dates भी आज बता देना. So I'm going to ask and go ahead towards Ashley, where I'm going to ask Ashley, how does it feel visiting our country, and you've already been to the personification of love, the Taj Mahal. How does it feel being here with us? Okay. Hello. First of all, namaste, India. Namaste. So adorable. It's been an honor for me to visit India. I'm going to tell you a little story. When I was little, I had a project actually, where they told me to choose a country that I wanted to represent. I chose India. Wow. So I fell in love with the Indian story and the culture a long time ago. So for me, it was a dream come true to be here and to be able to visit something that I already knew, but I would only knew it in books. So being able to be there and showcase it, it was completely amazing, and definitely something that I would never forget. Oh, this is incredible. So dreams do come true. You did manifest it at that point of time, and it's become a reality. This is phenomenal. What a beautiful feeling. But let me tell you, of course, it's always about the aesthetic appeal, which attracts you first. But we also know about your inner beauty, about the great work you've been doing for the society, and your voice is mesmerizing. Ladies and gentlemen, she's our reigning Miss Global 2K23, and she won the title in 2K24. What a beautiful feeling, Miss Ashley. Thank you so much. So I'm going to come, and at first, before we go ahead, और हम खालिद साहब से अब बात करें, before we come to you, मैं चाहूँगी खालिद साहब, आप एक फोटोग्राफ के लिए सेंटर में आ जाएं, in between both our queens, please. Please, come. In between our queens, खालिद साहब. शेयर इस सब्जेक्ट पर काम करेंगे या साइबरमैन मनीष जी जो है वो हमारे स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और अननोन तरीके से ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं मुलाकात हुई और उनके बारे में पता लगा. बहुत शाही नहीं है मनीष जी, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक किसी सिलसिले में बातचीत हुई और तब पता लगा कि असली साइबरमैन का टाइटल इनको ही मिला. हम पास रहते हुए मैं नहीं मानूंगी कि साइबरमैन असली साइबरमैन यही है. तो थॉट वहाँ से आया. आज की डेट में हम ये जानते हैं या सुनते हैं कि हिंदुस्तान का हर चौथा आदमी आज साइबर फ्रॉड से जो है फेस कर रहा है, और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो फ्रॉड होते हैं और लोग परेशान हैं. लेकिन उस सब के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया मनीष जी ने, वो एक उनकी अपने आप में एक थ्रिल स्टोरी हो सकते हैं, जो थ्रिलर टाइप की है, वो लाइफ में जो उनकी ज़िंदगी गुजरी. तो हमें आइडिया है कि ये तो पब्लिक में आना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. बिना अवेयरनेस के जो साइबर फ्रॉड को रोका नहीं जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत लोग जैसे ऑफिसर्स और
हम लोग आम आदमी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए और अवेयरनेस की जाए जिससे कि लोग समझ सकें। तो देन वन बाय वन मिलते जाते हैं तो वो कारवा बनता जाता है। तो मनीष जी के साथ में हाथ ज्वाइन किया और देन फिर इसको उसके टीम के साथ में काम शुरू किया। और राकेश जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने हैं और हमारे सीनियर भी हैं, तो उन्हीं बात को कमान दी गई। ये सरप्राइज था मेरे लिए भी एशले कमिंग इन दुबई। तो लास्ट मंथ में दुबई में था, किसी पॉलिटिकल सिलसिले में गया हुआ था और सडनली 22 को भी बर्थडे होती है, तो उस बर्थडे में हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और साथ में शेयर किया, बहुत फीलिंग्स शेयर की, उनकी एक्सपीरियंस शेयर किया। देन वहीं से माइंड में आया कि क्यों ना अब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड में बहुत ही ब्यूटीज को जो है दिलों में उठाया है, पब्लिक ने उठाया है, सबको उठाया है और लोगों को शेयर किया जाए इसको भी, और इसमें टैलेंट है। और ये तो यहाँ पर आने के बाद ये दिशा को लेकर नहीं है तो वन ऑफ द लीड कैरेक्टर के लिए, और ये पार्ट हो चुका है। एक मिशन है हम लोगों का, ये साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट एक मिलकर के एक मिशन उन्होंने तैयार किया है कि हम लोग इसमें जाएंगे और काम करेंगे, ये पार्ट होंगे और हमारे साथ होंगे आज यहाँ पर। और हमारे खास सीनियर और हमारे बहुत दिल अजीज जाकिर भाई जो इस ज़माने से है हमारे मतलब साथ हैं, हमारी बहुत मदद की है उन्होंने इस इंडस्ट्री में खड़े रहने के लिए। लास्ट फिल्म में भी जाकिर भाई वन ऑफ द लीड कैरेक्टर थे, उन्होंने अच्छे से दिखाया था और बहुत साथ दिया। एक और हमारे लीजेंड जिनको हम नहीं भूल सकते जिंदगी में वो है मोहम्मद जी, सीनियर और हमारे घर से गॉडफादर थे, जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। भाई की तरह काम किया उन्होंने और दुश्मन होती है कि जब वो फिल्म रिलीज़ होने के वक्त आया तो अचानक डेथ हो गई, जो कि लास्ट फिल्म से का जिंदाबाद के बीच से रिलीज हुई 2020 में के बीच में। तो नाउ अब फिर से हिम्मत कर रहे हैं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, चाहते हैं कि दोनों काम हो, सोशल वर्क भी हो, पब्लिक अवेयरनेस भी हो और इंटरटेन भी हो। बाकी आगे जो है राकेश जी बताएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आलू जी। और I'm going to ask Ashley, you know, he did mention that when he offered you the film at Dubai, what was your first reaction? What was the thought that came to your mind? Really? Is that true? Really? What? Okay, for me, it took me like, I would say 1 day to be able to like understand and process that Ashley is not only visiting India, but will be starting in a Bollywood movie. It was like making two dreams at once. Definitely took me some time to process it and understand like, wow, I feel very blessed because this year has been actually a big experience for me. And I think that's something very important because in life there's full of changes, but you have to be willing to take risks to be able to build your future. So I am very happy and very honored for the opportunity. Thank you so much for seeing that potential in me, and I promise you all that I'll do my best. Thank you so much. I know we're all eagerly waiting to hear from Zakir sir too, but before that, Nancy, I'm going to ask you, how does it feel being here? Khalid sir ने कहा है इस राज को राज रखते हैं। I don't know, आप कुछ बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? How excited are you for Cyberman, यार? You're our beautiful Miss India Global. Please, आपसे सुनना चाहेंगे। So, firstly, Namaste India. Namaste. I have been here for Ashley, like she's a very good friend of mine. Earlier, I don't know Khalid sir, Manish sir, and everyone. I was not aware about the movie. It was a surprise for me, and
So yeah, I'm here with Ashley, and they asked me about the movie as well. So now I'm thinking for it. I will not say any words yet, but let's see and hope for the best. Ooh, la la la. So, well, friends from the media, already we are inviting you for the grand Muhurat, जिस दिन मुहूर्त होगा, so we get to know a lot more secrets. And now, for the man, जैसे जिनकी आवाज, but जिनके शब्द और जिनके experiences सुनने के लिए हम सब बेताब हैं. Ladies and gentlemen, please join me in putting our hands together as we have the privilege and the honor of listening from our very own living legend live right here. सीक्रेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। Okay, sir. Thank you. नहीं, दरअसल मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई का और बाकी तमाम लोगों का, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नहीं मालूम। परसों इनका फ़ोन आया तो कहने लगे कि एक ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट होगा तो आपको आना है। मैं आ जाता हूँ। मुझे लगा मैं शायद दोस्त हैं इसलिए बुला रहे हैं। फिर कहने लगे फ़ोटो भेज दीजिए। मैं क्या है, फ़ोटो क्यों भेज दूँ? कहते आपकी तस्वीर लगानी है। तो मैंने कहा आप मुझे ले रहे हैं क्या फिल्म में? कहते और क्या? तो ये बोलो ना कि आपको फिल्म में कास्ट कर रहे हैं, तो एक एक करके कभी कुछ, तो मुझे ज़रा भी नहीं मालूम स्क्रिप्ट के बारे में। और मैं तो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, ऐसे उठ के आ गया। देखिए इतने ब्यूटीफुल गर्ल्स हमारे बीच में, इनके सामने मैं कैसा लग रहा होगा, मैं सोच ऐसा। तो खैर कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट। हमारे प्रोड्यूसर साहब, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब, उनसे डायरेक्ट हमारा रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर साहब जो हैं ये भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूँ, को प्रोड्यूसर भी यूपी के हैं, साहब मैम भी यूपी के हैं। और अनिल साहब से, अनिल नहीं, राकेश जी से जो रिश्ता है वो अलीस बजली साहब की वजह से कॉमन है। मिला मैं आज हूँ उनसे पहली बार, लेकिन हाँ एक दूसरे का काम देखते रहते हैं, करते रहते हैं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे की काम की तारीफ करते हैं। बाकी यही है कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुझे पता लगेगा मैं क्या गुण खिलाने वाला हूँ इसमें, मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। And handsome is what? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मिशन और एक कॉमन मैन जो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले पैसा निकलता है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, रोऊँ भी या नहीं रोऊँ। क्योंकि रोने में भी उसे ये लगता है कि मेरे अपने मजाक बनाएंगे कि यार ये तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ा था, हम इसी से एडवाइस लेते थे और इसी का पैसा निकल गया, ये यही स्कैम में फंस गया तो क्या होगा। तो इसलिए वो ज़्यादातर लोग आजकल शेयर नहीं करते। इसको मैं 2 लाइनों में ऐसे बताना चाहूँगा कि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर के पीछे भागता है। लेकिन लाइक और शेयर की दूसरी डेफिनेशन भी है। लाइक को लोग समझते थे, जिससे पहले लोग चिढ़ते थे, आज उससे खुश होते हैं कि ठेंगा दिखाया, मतलब वो हमें लाइक कर रहे। और शेयर का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड करना, एक मतलब और भी है। लाइक का मतलब होता है जो अच्छा होता है हम उसे लाइक करते हैं, और जो हमें यहाँ अच्छा लगता है उसे हम शेयर करते हैं। दैट्स मीन कि यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करिए। आपके पास बैठे होते हैं, दूर नहीं बैठे होते हैं, और हम उन्हीं से छुपाते हैं। और एक कॉमन मैन की सोच की जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अगर स्कैम हो रहा है तो पुलिस, मीडिया या राजनीतिक लोग हमारी वही मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देश के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लिबास में जहाँ खड़े होते हैं देश के लिए कार्य कर सकते हैं। Beautiful, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर का ये परसेप्शन मैंने नहीं सोचा है कभी। And Rakesh sir, it always begins with the director, and as you say, sir, please. अभी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता लग गया है, और जैसा कि टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बट मैं अपनी फीलिंग अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे जिस वक्त उन्होंने एक आइडिया बताया खालिद भाई ने
तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक सोशल मैसेज है। और जब भी किसी के साथ में साइबर क्राइम का कोई भी शिकार होता है तो वाकई वो बहुत हेल्पलेस होता है, उसको नहीं पता होता है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ ढूंढूं अपना पैसा। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत सारी चीज़ें हम फिल्म के ज़रिए बताना चाहते हैं आम पब्लिक को कि उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और वन बाय वन हम ऑडियंस को कैसे वो चीज़ें बताते हैं। हालांकि खालिद भाई और हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स उनके थे, कुछ मेरे पास थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से हमको शुरू करना है। और वो चीज़ मनीष जी ने सॉल्व कर दी। जब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि यार ये माइंड ब्लोइंग है, इसके ऊपर हमको गो ऐड करना चाहिए। एंड आई थिंक आज जो हम लोग सब मिले हैं वो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए मिले हैं और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलना इट विल बी टू अर्ली। सो थैंक्स फॉर कमिंग एंड बस आप लोगों की सबकी हमको ब्लेसिंग्स चाहिए कि एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकें और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो क्लियर कट हम कन्वे कर पाएँ। Thank you so much. Thanks to you, Rakesh. We really look forward to, ladies and gentlemen, the grand announcement of Cyberman this evening. It's time for us to thank each and every one of you for joining us here. And now we shall be open to the questions from the media. Should we be open, Khalid ji? So, आपको microphone दें कि आप ऐसी पूछेंगे. Should we have a microphone for the media, please? Sure. Himanshu ji, I want to request Himanshu ji, how do we go about? Hello. The mics to come. Well, everything started the day of my birthday. Actually, I would say this was my birthday gift. Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I said I'm always like the acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that it's more as a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically, I love those areas to work with. थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं हिंद समर्पण से शिवजी रामपुरी। अभी आपने कहा कि जो साइबर क्राइम होता है तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले आजकल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं पढ़ पाते। पहले माँ बाप लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद इंस्टॉल भी कर देते हैं, उसको पता ही नहीं है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं, यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है पर वो विकास का नहीं कोशिश। तो सर जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जिसको आपने शुभारंभ किया है तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर हर चीज़ पर फोकस है। 4 साल के बच्चे से लेकर 70 साल में सबको ध्यान में रखते हुए 70 साल में मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं तो 100 ईयर्स के इंसान तक के लिए है, क्योंकि जो जिस एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंस रहा है। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था बिलुबिल गेम, वो छत पे आके कूद लगा, तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही, तो इसके बाद मुझे क्या मिले। तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा आपका मिशन। Actually, do you think belonging to the fashion field and then getting the Miss Global title, it's an easy way to get into the Bollywood industry?
To be honest, no, because there are two different types of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to more see and maybe notice. But again, I think everything I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one over here. Choose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people. Definitely, after being here, the food, and obviously very beautiful landmarks that has been traveled around the world. And even me that comes from a small island, I was able to know about India's story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here today. खालिद जी, आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और ये शायद आपको एक ही नज़र में भा गई। आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली तो फर्क है। तो शी वाज योर फर्स्ट चॉइस। मैं कोई प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन या किसी एम के तहत नहीं गया था, क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल में आपने और अच्छा यहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है। उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में, तो मेरे पास उसमें कोई तैयारी नहीं थी। सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं केक कटिंग के बाद गिफ्ट दे रहे हैं। मुझसे भी पूछा गया NGO को, मुझसे मेरा मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके काम कर रहे हैं, उसके फाउंडर मेंबर हैं मुसलमान। ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप? तो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर केस लग सकता है। तो मेरे आइडिया है कि अगर बॉलीवुड में ये दिखाना चाहें और फर्स्ट उसने जब देखा माई फेस तो हमें ये US में ना लेकर के इंडियन ज़्यादा लेनी है। माई फेस इंडियन लेकिन ये कैरेक्टर में सूट होती हैं और जिस तरह से इसकी एक्टिवनेस और उनका नेचर सबसे अच्छा, जिसकी वजह से हमने उनको बोला कि नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट किया। आपके किरदार पता नहीं, लेकिन जो इन्होंने क्लिपिंग दिखाई है उसमें आपने 3 स्टार वाली पुलिस की वर्दी पहनी है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। कल ही बताया इन्होंने मुझे, मैंने भी कह रहे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैं कही नहीं है। फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो तो IPS की ड्रेस में थी, तो कहने लगी तो चलेगी नहीं। तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा तो अभी उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्म में भी ऐसे ना कर ले, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले, किसी और से चेहरा मेरा लगा दे है तो गड़बड़ हो जाएगी क्या। हाँ नहीं, मैं देखते हैं। तो एक्चुअली मैं तो इनसे बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये थमा दिया हाथ में, तो चलो ये तो रास्ते की बात है कि जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं, ओम प्रकाश जिंदाबाद। ओम जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं। हमारे सीनियर, बहुत सीनियर थे नसीर भाई और ओम जी की बैच के MSc के। तो देखिए मज़ा आएगा, कुछ काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है।
राकेश जी, आपसे मेरा सवाल है, आप अनीस जी के साथ काम कर चुके हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस, मेरे भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस करते हैं और कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, ये तो सीरियस से कर रहे हैं, कैसे जमाइएगा? नहीं, टाइटल है और साइबरमैन डेफिनेटली, और एक फील है थ्रिल की, बट हम इसके अंदर शायद ये भी एक सरप्राइज ही होगा। थ्रिल अपनी जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे है, तो बहुत सारे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलीफ देते हैं। एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफ़ी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड वी वेर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग। तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। राकेश जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। बॉलीवुड की फिल्मों में टिपिकल टाइप के विलन्स होते थे, लुक होता था, फिजिक्स होती थी, बॉडीज होती थी। आज इंटरनेट का ज़माना है, क्राइम का तरीका बदल चुका है। आपकी फिल्म की हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, विलन कैसा होगा सर? विलन सर, जैसा कि मनीष भाई ने बोला अभी कि जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं, एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीज़ें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था जिसको इन्होंने पकड़ा। और सरप्राइज मेरे लिए भी था जब मैंने इनसे सुना ये कि ही वॉज जस्ट 22, उसको 7 months के लिए फिर लास्ट में किस तरह से सजा मिलती, एंड ही वॉज हैंडीकैप्ड विथ 1 leg, बट बाय माइंड, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड, तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली एबल्ड है वो। दैट्स इट। खालिद साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है। जैसे कि जाकिर साहब ने बताया कि उनको नहीं पता था कि इस तरह का पिक्चर उनका आने वाला है। आज एआई का ज़माना है, आज एआई के जरिए आप कुछ भी करा सकते हो। तो एआई का सबसे बड़ा खतरा, लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि आपकी फिल्म में ये चीज़ को भी दर्शाया जाएगा। डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो हमें ये नज़र में रखते हुए इस फिल्म को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव में वो बेनिफिट देखे जाएँ और नेगेटिव से हम होशियार हैं। स्पेशली छोटे बच्चों, छोटे बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे, उनके पास हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो रोने लगते हैं, यानी हैबिट पड़ गई है और कैसी बीमारी की तरफ वो कम हो चुकी है। जो हम लोग बचपन में इतने ज़माने में ज़माना बोले जो भी है वो सर भाई एक्सपीरियंस कि हम लोग फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करते थे, स्पोर्ट्स में। आज की डेट में क्या हो गया है कि सिर्फ माइंड चलता है, वही ग्रो करता है, फिजिकली नहीं कर पा रहे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसके लिए हमें उसको नज़र में रखते हुए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया है और डेफिनेटली आप लोग उसको हेल्प करेंगे। और हर घर में है, ये पर्टिकुलर इसलिए नहीं कि उस एरिया का आदमी है, ये है या कोई लड़की है या कोई लड़का है या बड़ा बड़ा कोई एवरीबडी, हर घर घर में वो प्रॉब्लम है, उस घर की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा कोई पुलिस वाला या कोई आएगा सॉल्व करे, कोई नहीं, आपको खुद सॉल्व करना है। क्योंकि टीचिंग स्टार्ट होती है बच्चे की माँ बाप से, देन कॉलेज के टीचर्स आते हैं, फिर खुद का एक्सपीरियंस आता है। रियल कैरेक्टर जो है वो मनीषी खुद है, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जब इनके साथ में ये हुआ, नियर अबाउट इनको 10 months लगे उस तक पहुंचने में। तो इट्स ए रियल
नहीं अभी it will be too early to reveal the story of the film. Right? नहीं incidents तो मुझे 10 महीने लगे, कुछ समय का इंतजार तो करिए। Very good, very good. थैंक यू। खरी इस में ग्रुप फोटो हो चुके हैं। एक चित्ते सर सेंटर में ऊपर और कच्चा मान क्या कहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। और मैं उस वक्त कहना भूल गया कि पिछले महीने मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। और मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। काफ़ी देर तक कॉल पे लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली मुझे समझाती रही क्यों क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना वो वाले। मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ देते हैं। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया। लेकिन हाँ, ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से। और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है। तो लेट्स सी, जैसी शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिल्म हमें कहाँ लेके जाएगी। देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, जिसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है। तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव ही हूँ। इंडियन 2 रिलीज़ हुई, फिर वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज़ होने पे हैं। फिर D2R का एक वेब सीरीज़ है, वो थोड़ा सा वो है, फिक्शनल है। और भी एक दो चीज़ें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। यार देखो, मैंने सारे ऑलमोस्ट ओलंपिक के सारे अपने इंडियन प्लेयर्स के मैचेस देखे हैं। विनेश जी का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है। और विजेंद्र जी बोल रहे थे कि जो कि ओलंपिक के हमारे मेडलिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एक रात में 5-5 किलो वज़न कम कर लेते हैं। ये 100 ग्राम कैसे, हाँ ये 100 ग्राम नहीं हो पाया कम, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तो अब पता नहीं, क्योंकि मीडिया पे इतनी बहस है इसके ऊपर कि कुछ लोग कह रहे हैं साजिश हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं क्या हो गया।
लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बहुत ख़राब लगा, इतना ख़राब लगा क्योंकि मैं सारे मैचेस, मैंने हॉकी के सारे मैचेस देखे, मैंने नीरज चोपड़ा का जो जेवलिन थ्रो है देखा, हालांकि वो बैड लक हो गया, उनके हाथ में थोड़ी तकलीफ़ है, फिर भी इतनी तकलीफ़ के बाद वो इतना नाम रोशन किया है, देश का सिल्वर लेकर आए हैं। फिर एक यंग लड़का कल ही अमन जिसने ब्रॉन्ज लिया है। तो देखिए हमारे प्लेयर्स में ना तो जज्बे की कमी है और ना ही मेहनत की कमी है। कहीं कुछ कमी है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ऐसे कह दूं कि इनकी कमी उनकी कमी, हालांकि मैं वहाँ बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं उस सिस्टम को जानता हूँ। तो जिसकी भी कमी है उसको पूरा करके, उसको ख़त्म करके, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा सहूलियतों के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम आज 60वें नंबर पे थे तो शायद हम 40वें पे आ जाएं। ऐसा धीरे धीरे हम बढ़ते रहें। थैंक यू। बस एक और खालिद सर, आपने पीछे फिल्म के बारे में बताएं। आपकी जो लास्ट फिल्म थी जब आप इंडिया में थे, अभी आप दुबई में सेटल्ड हैं, तो इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे प्लान हो गया? लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया अभी, जो 2020 दिसंबर 2018 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज़ हुई, और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक फैमिली, जगदीप साहब लेजेंडरी वो भी, और कुलभूषण खरबंदा जी वो भी, एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर हैं वो मनीष गोयल जी, ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के, और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन जिनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया, और ये साइबरमैन का टाइटल लेने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई और फाइनली उन्होंने एक अचीव किया। उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है, लेकिन उसको हम लोग फिल्म में पर्दे पे जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता कोई, लेकिन उनकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए वो किसी सुपरहिट मूवी से कम नहीं थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर लाया जाए, जिससे यही एक सोर्स है जो पूरी दुनिया को इसके ज़रिए मैसेज दिया जा सकता है, एंटरटेन किया जा सकता है, और इसलिए इसको हमने पहले पर्दे को लाने का ठाना, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, क्योंकि मैं लास्ट 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ बैक टू कैमरा, तो इसको अच्छी तरीके से लाएं और पब्लिक में दिखाया जाए, जिससे कि अवेयरनेस भी हो, लोगों को फ़ायदा भी हो। यही हम लोगों का एक मिशन बना लिया कि ये 140 करोड़ जनता जो हमारी हिंदुस्तान की है बहुत इनोसेंट है, जिसको नहीं मालूम होता है, और वो किसी फ्रॉड में, किसी उसमें फंसते चले जाते हैं। तो हमारा टारगेट, ये अब जो मिशन है वो हिंदुस्तान लेवल नहीं रह गया, ये पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है। हर जगह साइबर फ्रॉड, क्योंकि डिजिटल हो गया है, पूरा वर्ल्ड डिजिटल पर चल रहा है, डिजिटल इंडिया ने बोल करके डिजिटल ग्लोब बोल सकते हैं। तो उन सब के लिए मैसेज है, और अवेयरनेस है, और एंटरटेनमेंट है, तो ये इन लोगों का। थैंक यू। राकेश जी आइए। बहुत अच्छा सर। राकेश जी, आप अनीश जी के साथ एसोसिएट एज ए डायरेक्टर में थे, और ये फिल्म की कहानी जब आपको सुनाई गई
और ये जो प्रोजेक्ट आज अनाउंस किया गया इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी कुछ बहुत कुछ बोल दिया आपने। हाँ, मैं फिर भी क्या ऑलरेडी बोल चुका हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि खालिद भाई और हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूज़न भी था जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें। और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि यार ऐसी ऐसी एक कहानी है और ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने फिर बस इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। सर, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, जो इंटरनेशनल है जी। और इसके लिए आप किस तरीके से तैयारी की? सर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है और जहाँ पे रियल लोकेशंस पे इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वहीं रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल है। उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज़ देयर लिटिल बिट 10-15% टू मेक द ब्रिजेस कि एक इंसिडेंट ख़त्म हुआ और दूसरे पे जाना है तो उनको तो 10 महीने का टाइम लगा। अब 10 महीने की फिल्म तो हम बना नहीं सकते, तो हमको 2 घंटे में सब कुछ बोलना है। तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो लोकेशंस हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं और जो हमको लगा कि यार इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है, वो हम लोगों ने पकड़ी। ओके, थैंक यू। मनीष जी, आपके साथ जब फ्रॉड हुआ 2016 में, उसके बाद आपने 10 महीने तक जद्दोजहद करके उस चोर को पकड़ा। उसके बाद अभी तक आपने 5 लाख से ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं और जब इनसे मुलाकात हुई डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर साहब से, तो फिर क्या आपने इनको सुनाया कि क्योंकि ये नई कहानी होगी, अभी तक पर्दे पे देखी नहीं होगी लोगों ने, तो जब आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करते हैं तो मेन क्या टॉपिक होता है, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका सोचते हैं? एक्चुअली जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो वो जो जर्नी थी मेरी, जैसे भैया ने बोला कि जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी है ना, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है ना, जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है और वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है। और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है, बताऊँ किसे बताऊँ, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से, मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं और लगभग आई थिंक रोज़ के 10-12 केस मेरे पास आते हैं, जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, तुम किसी ट्रैप में हो, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा, और यदि आप किसी और धर्म से हो तो वहीं चढ़ा दीजिएगा, डेट्स ओके। इससे मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। मनीष जी, अभी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, जो आपने आज देखा 2 कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
बस आप अगर आप ठीक हैं, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी ट्रैप है या XYZ जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है छोटी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद नहीं करते। वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने आम लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़ दिल तक जाती है। क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है या अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज़ ना करिए। थैंक यू। मनीष जी, अनूप जलोटा जी आए। करवा लिया जाए, नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया कंप्यूटर से, कितना तक होता है, मतलब कहाँ तक उनकी पहुँच है। मैंने तो सुना है कि एक बार व्हाइट हाउस में भी अटैक हो गया था, तो कहाँ तक उसकी पहुँच है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी कि आपको किस तरह केयरफुल रहना है। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, तो व्हाइट हाउस में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतारने पड़ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। प्रोग्रेस लाइन ये बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबरमैन देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, सारी दुनिया इसको देखे। और इसमें जो हीरोइन है वो अमेरिका की लोग क्वीन है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। आपका खूब नाम हो। मैं यूँ नहीं देख रहा, आप समझ सकते हैं, मैं ऐसे देखना पड़ता है तो, लेकिन अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खूब काम करिए और हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और खूबसूरत। सर, आप रिकॉर्डिंग से समय निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोड्यूसर हमारे Say about your role in the film and how was the first meeting with Khalid sir in Dubai? Well, everything started coming to Dubai. I never thought that after finishing that small trip, I was going to get this big role and this big opportunity. I'm very honored for the opportunity. And being here, all I want to say is about my role. I am super excited to be doing as a cop. I cannot give a lot of details about what's going to be, but I'm super excited for the opportunity and being here. Thank you all for coming and receiving me with a warm welcome. So thank you so much for everything. Actually, slightly louder. Oh, okay. Sorry. Okay. Keep rolling. Okay. Yeah, once again. Yeah, again. So this experience started in Dubai with the small trip that I was doing as Miss Global. Being here, I believe it's part of my destiny. I was able to be here. So yes, I'm super excited and very excited for this part in my life, this journey that I am about to start. So yes, I cannot talk about a lot about my character, but it's something that I was always looking forward to play. So I'm super excited for everything to start, and you showcase a very good movie, that for sure. Are you learning Hindi here? I am starting to learn a lot of Hindi. I already know Namaste, India,
but definitely there's a lot more to go. I ensure you that next time I come, I will know more Hindi, for sure. And how you liking the media from India? Oh, definitely the best one. Best one so far. So thank you so much for coming here, for giving me this warm welcoming. It's been an honor for us to be here. Thank you. मानसी जी मिस ग्लोब इंडिया जीतने के बाद अब एक फिल्म शुरू हो रही है जिसमें आप एक बहुत अच्छा किरदार कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड हैं? दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बहुत एक सपना होता है हर एक ब्यूटी क्वीन का बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए। एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। यस। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? अभी आपका नरेशन हुआ है, आपने कहानी सुनी? मोर ऑफ इट्स नॉट डिसाइडेड येट, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।